Today I am going to revise chapter Mineral and Power Resources. So first is, what do you mean by minerals? What are minerals? A naturally occurring substance that has definite chemical composition is called mineral. Naturally occurring substance that has definite chemical composition is known as minerals. Minerals are of two types, metallic and non-metallic. Metallic minerals contain metal in raw form, and metallic minerals are further divided into two parts, ferrous and non-ferrous. Ferrous contain metals. For example, ferrous में आप बताओगे, ferrous contain metal. For example, iron ore and manganese. Non-ferrous do not contain metal. They have other types of metal such as gold, silver, copper, etc. So minerals, I have told you two types, metallic, अभी मैंने metallic ही बोले हैं. Metallic में आप कहोगे they contain metal in raw form and they are further divided into two parts, ferrous and non-ferrous. Next is non-metallic minerals. They do not contain metal. For example, आप बता सकते हो petroleum, coal, natural gas, etc. Extraction of minerals. Different methods are used for the extraction of minerals. For example, mining, drilling, and quarrying. Mining, open cast mining, shaft mining. Open cast and shaft mining. Drilling, when petroleum के लिए वो बोर बनाते हैं and then petroleum is drilled from the surface of the earth. Quarrying, जो बिल्कुल पास अर्थ सरफेस पे ही मिनरल्स होते हैं, to get those minerals, that is known as quarrying. Quarrying. So minerals that lie shallow depth are taken by removing the surface layer. सिर्फ surface layer को remove करके जो mineral पाए जाते हैं, उनको हम कहेंगे open cast mining. जब deep bores करके minerals को निकाला जाता है, that is known as shaft mining. जो बिल्कुल near the surface of the earth, for example, this is the surface of the earth. So this is the surface of the earth. ये open cast mining. अब यहाँ पे डीप बोर, तो ये शाफ्ट माइनिंग. Deep inside the surface of the earth, that is known as shaft mining. Deep bores जिसमें किए जाते हैं. Open cast lie near the surface of the earth, whereas shaft mining, deep bores are made to take out the minerals, that is known as shaft mining. Quarrying, बिल्कुल पास जो कहो कि आपको और surface पे जो हमें minerals मिल जाते हैं, that is known as quarrying. So different methods for petroleum drilling is used. So different methods are used for the extraction of mineral. Next, rock from which minerals are mined. Rocks from which minerals are mined are known as iron ore. Rocks from which minerals are mined is known as iron ore. आपके घरों में आप salt use करते हो, salt is mineral. Pencil का graphite is also a mineral. And utensils which are using at home, because aluminum is the part of mineral, तो हम घरों में कितना ही, अगर आपको पूछा जाए कि minerals you are using in your daily life, तो ये सब आप daily life में use कर रहे हो. So distribution of mineral is uneven. Different areas are rich in different kinds of minerals. For example, जैसे हमने पढ़ा था Europe. Europe is the leading producer of iron ore.
Asia is the leading producer of tin. Europe is the leading producer of iron ore. And then you have read about North America. North America, आप कह सकते हो leading producer of iron ore, nickel, gold, uranium, copper. ये सारे different minerals are found in North America. South America में आप कह सकते हो Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world. High grade iron ore, Brazil is famous for that, and Brazil is in South America. Next, Africa. Africa is rich in mineral resources and world's largest producer of diamond and gold. Kimberley and you have read about Johannesburg. Johannesburg gold mines हैं. Kimberley is famous for diamond mines in Africa. So Africa is rich in gold and diamond mines. Australia is the largest producer of bauxite. And Antarctica में आप कह सकते हो iron ore, gold, silver, and oil. So what are the uses of minerals? Minerals are used for various purposes. Here, though this question is not given at the back, अगर दिया भी है तो it's good, नहीं दिया then you have to learn. For example, ये किस form में आ सकता है? Define minerals, explain metallic and non-metallic. What do you mean by ferrous and non-ferrous? या फिर what do you know about the extraction of minerals? Europe is the leading producer of which minerals? ऐसे भी आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? नेक्स्ट, राइट द यूजेस ऑफ मिनरल्स. आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, राइट द यूजेस ऑफ मिनरल्स. अब मिनरल्स को बहुत सी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं, ठीक है? आप कहोगे ज्वेलरी बनाने के लिए भी मिनरल्स आर यूज्ड. अब कॉपर इज यूज्ड इन कॉइन्स एंड पाइप्स एंड कॉइन्स. और साथ आप कह सकते हो इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसके लिए भी आप कभी देखना घर में इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर यूज किया होता है. कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, कॉइन्स, पाइप्स, ठीक है? फिर आप कह सकते हो एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर, आप कह सकते हो एल्यूमिनियम जो है ना दैट इज यूज्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, एंड फॉर एग्जांपल यूटेंसिल्स आर आल्सो मेड, ठीक है? तो इस वे से आप बता सकते हो यूजेस ऑफ मिनरल्स. सॉल्ट वी आर यूजिंग इन अवर फूड आइटम्स, ठीक है? तो इस वे से यू कैन राइट द यूजेस ऑफ मिनरल्स, ठीक है? आप पेट्रोल डीजल का बता सकते हो, ठीक है? वी कांट रन अवर व्हीकल्स विदाउट पेट्रोल और डीजल. तो इस वे से आप इन मिनरल्स के यूजेस बता सकते हो. फॉर ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हो मिनरल्स आर यूज्ड टू रन द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो इस वे से आप ये सब, और वैसे भी ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन आप कह सकते हो ये किससे बनते हैं? एल्यूमिनियम यूज होता है इनमें. तो यू हैव टू लर्न द यूजेस ऑफ मिनरल्स. शुड वी कंजर्व मिनरल्स? दैट बिकॉज दे आर लिमिटेड, their stock is limited and they may be exhausted one day. Conventional and non-conventional sources जो हैं, कन्वेंशनल कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ठीक है? और इनका स्टॉक भी लिमिटेड है. दे मे बी एग्जॉस्टेड, खत्म हो सकते हैं. वी आर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम कितने सालों से इसे इन्हें यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं. वैसे भी हम कहेंगे लिमिटेड है स्टॉक, और कभी कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स, यू हैव डन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब किसकी एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कन्वेंशनल. हाइडल पावर इज आल्सो द also an example of conventional sources of energy. Next is non-conventional sources of energy. Non-conventional में आएंगे solar energy, windmills, wind energy, solar energy, biogas, nuclear power, geothermal, tidal. ये सब किसकी एग्जांपल है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और ये सारे इनएग्जॉस्टिबल हैं. दे ऑल आर इनएग्जॉस्टिबल. नॉन कन्वेंशनल ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एंड फ्यूचर में हमें इन्हीं को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. फ्यूचर में यही यूज होंगे
So we should use alternative sources of energy because conventional are exhaustible. तो हमें inexhaustible sources of energy को use में लाना चाहिए. ठीक. अब wind energy के मैं कुछ advantages and disadvantages बोलूंगी. These sources have some advantages and disadvantages. आपको पता है नॉर्वे was the first country in the world develop hydroelectricity. हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी नॉर्वे को आपने बताना है. देन CNG compressed natural gas, इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है ये, इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, and it causes less pollution than petroleum and diesel. The word petroleum is taken from Latin word petra meaning rock, oleum meaning oil. So petroleum meaning rock oil. Petroleum का मतलब क्या है? Rock oil. Advantages and disadvantages of wind energy. First, पहले मैं बोलूंगी advantages of wind energy. Pollution create नहीं करती, ठीक है? Do not create pollution. Low cost production of electricity. Next, safe and clean. जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है ना थ्रू विंड मिल्स, वो हमें बहुत लो कॉस्ट पड़ती है एंड सेफ एंड क्लीन है. अब डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट इज पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती. सेकंड, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है. थर्ड, सेफ एंड क्लीन है. दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ, अब मैं बोलूंगी विंड एनर्जी के डिसएडवांटेजेस. नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है, क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन. देन विंडमिल्स कॉस्टली टू सेटअप. विंडमिल को सेटअप करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोड्यूस करती है दैट इज चीप, बट टू सेटअप विंडमिल इज वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी. आप कह सकते हो डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शन एंड हार्मफुल फॉर द बर्ड्स. बर्ड्स के लिए ये जो बड़े बड़े फैंस चलते हैं तो बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं. नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप विंड मिल्स. हार्मफुल फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हार्मफुल होती है. विंड एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दे कैन बी आस्क्ड इन पेपर, though these questions are not given at the back but they can be asked. Next is solar energy. सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस. फर्स्ट इज सोलर एनर्जी का एडवांटेजेस में आप यही बताओगे कि इनएग्जॉस्टिबल है. फिर आप कहोगे पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. सोलर एनर्जी से पोल्यूशन नहीं होता, इनएग्जॉस्टिबल है. अब इसके डिसएडवांटेजेस, वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप सोलर पैनल्स. बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये पैनल सेटअप करना. देन आप कह सकते हो कि वेस्ट होती रहती है क्योंकि इन्हें ऑफ नहीं किया जा सकता. ठीक है, नॉट इजी टू ऑफ देम, सो गेट वेस्टेड. नेक्स्ट, टाइडल एनर्जी. सब में ये बात तो आएगी कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है. आप यही बताओगे कि टाइडल एनर्जी में इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन. ये भी इनएग्जॉस्टिबल है टाइडल एनर्जी. अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ एंड डिफिकल्ट टू हार्नेस. नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी में आप बताओगे एडवांटेजेस में एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. डिसएडवांटेजेस में बताओगे जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप. बायोगैस लो कॉस्ट पे हमें ये फ्यूल पड़ता है, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज करते हैं, लो कॉस्ट पड़ती है इसकी. easy to operate, makes use of bio waste, इससे बायो वेस्ट भी यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. इट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जियोथर्मल एनर्जी जो है ना दैट इज क्लीन एंड इको फ्रेंडली है एंड ऑलवेज अवेलेबल है. क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत दूर होते हैं इनके प्लांट्स, लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द आप कह सकते हो सिटीज. सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी.
दूर होते हैं ये प्लांट्स तो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इको फ्रेंडली है, क्लीन है एंड और आप बता सकते हो इजीली अवेलेबल है। बट प्रॉब्लम क्या, ऑलवेज अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है कि फार ऑफ प्लेसेस पे होते हैं तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू द सिटीज। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट आप कह सकते हो विंड एनर्जी एंड डिफरेंट मैंने अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट इज अब मैं पढ़ूंगी ऑयल, यूजेस ऑफ ऑयल एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑयल। नो लिसन, एडवांटेजेस ऑफ ऑयल, easier to transport through tankers, basis of petrochemical industry, oil जो है transport through tankers and basis of किसका बनता है ये बेस, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का। डिसएडवांटेज, depletion of oxygen due to oil spillage and gets लीकेज हो जाती है, ऑयल स्पिलेज एंड गेट्स लीकेज। pollutants released caused acid rain, it leads to acid rain। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है ऑयल के, फर्स्ट आप बताओगे इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू टैंकर्स, फिर आप बता सकते हो केमिकल इंडस्ट्री का ये बेस है, बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन कम होती है, डिप्लीट हो जाती है ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड लीकेज। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन। Natural gas, easier to transport through pipelines, natural gas is transported with the help of pipelines, clean than oil and coal and cheaper than oil। नेचुरल गैस के एडवांटेजेस ही हैं, ऑयल से भी चीप पड़ती है, पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है और साथ में क्लीनर है, इस पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अब इसमें हमने फायरवुड पढ़ी, कोल पढ़ा एंड हाइडल पावर। फर्स्ट इज फायरवुड, इजी असेस, प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फायरवुड का मैंने बोला इजी असेस, इजीली अवेलेबल है एंड फिर मैंने बोला प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, जो लोग कलेक्ट करने जाते हैं ना ये वुड, उनसे पूछ के देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग है टू कलेक्ट, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम वेस्ट होता है एंड पॉल्यूशन क्रिएट करता है ये, और साथ में प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन होती है क्योंकि वुड्स कलेक्ट करते हैं तो पेड़ों को काटते हैं, ट्रीज को काट देते हैं, तो दिस लेड टू डिफॉरेस्टेशन। इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, इजी असेस है, हम इजीली अवेलेबल है ये वुड, और साथ में हम कह सकते हैं प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, डिफॉरेस्टेशन होती है, दिस लेड टू डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन क्रिएट होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग, कलेक्शन ऑफ वुड इज वेरी आप कह सकते हो टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट कोल, कोल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, लार्ज स्केल में अवेलेबल है एंड एफिशिएंट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं एंड बल्की टू ट्रांसपोर्ट, हैवी होते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, वेट के कारण हम कहेंगे नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट, बल्की टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कॉज पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट हाइडल पावर, नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं होता इससे, हाइडल पावर से, प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग एंड नेक्स्ट इज चीप, हाइडल पावर हम कहेंगे प्रमोट फिशिंग एंड साथ में हम कहेंगे इरिगेशन एंड चीप। आपने टाइड्स पढ़ा होगा, जब हाई टाइड्स आती हैं है ना, तो वो उससे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी, और क्या प्रोवाइड करती हैं, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। तो हाइडल पावर जो है दैट इज क्या हम कहेंगे इसे, नॉन पोल्यूटिंग, फिर हम कहेंगे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं एंड सपोर्ट द इरिगेशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, जो लोग डैम्स के पास रह रहे होते हैं उन्हें वहां से शिफ्ट होना पड़ता है, डिस्प्लेस कर दिया जाता है उन्हें वहां से एंड फिर आप बताओगे लो लाइंग रीजन्स होते हैं ना, फ्लड्स में भी अकर इन द लो लाइंग रीजन्स,
लो लाइंग रीजन्स में फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं, एंड वेरी एक्सपेंसिव टू सेटअप। हाइडल पावर प्रोजेक्ट सेटअप करना इज वेरी एक्सपेंसिव. So these are the advantages and disadvantages of different sources of energy. CNG means compressed natural gas, eco friendly है, इससे pollution create नहीं होता. First tidal energy station was built in France. First tidal energy station कहाँ पे सेटअप हुआ? फ्रांस. वो कंट्री जहाँ पे मिनरल्स नहीं पाए जाते, दैट इज स्विट्जरलैंड. फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन कहाँ पे सेटअप हुआ? फ्रांस. इंडिया में जियो थर्मल प्लांट कहाँ पे पाया जाता है? मणिकरण. कहाँ पे? मणिकरण. तो ये आपको सारे लर्न करने हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस के लिए. एंड नेक्स्ट इज कॉमन मिनरल्स you used in your daily life. I have told you just before: salt, graphite, aluminium, diesel, petrol, etc. Next is ore. Metallic minerals कहाँ से पाए जाते हैं? ores of metallic minerals. Two rocks. कौन सी rocks? igneous and metamorphic rocks. क्योंकि sedimentary rocks में हम कहेंगे non आप कहोगे कि non metallic minerals are found in sedimentary rocks, जैसे कि limestone, mica, ये नॉन और ये इसमें पाए जाते हैं. अगर मैं पूछूं मेटेलिक मिनरल्स तो आपने बताना है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अगर मैं पूछूं टू रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज, जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. जैसलमेर, कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. तो रूरल एरियाज में कौन सा हम कहेंगे कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज होते हैं रूरल एरियाज में? सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. एंड कोस्टल एरियाज में विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी. एंड एरिड रीजन में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. अब आ गया आपका, आप कैसे घर में रह के एनर्जी को सेव करोगे? आप एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस ऑन नहीं करोगे. कुकिंग आप क्या किसको प्रमोट करोगे? बायोगैस को, क्योंकि वो चीप पड़ती है. फॉर कुकिंग फूड हम क्या यूज करेंगे? पैंस के जगह पे प्रेशर कुकर. टू ड्राई क्लोथ्स वी विल नॉट यूज. किसको यूज नहीं करेंगे? मशीन्स, ड्रायर्स, इलेक्ट्रिकल ड्रायर्स. हमें उसे सनलाइट में हम अपने क्लोथ्स को सुखा सकते हैं. तो इस वजह से आप बता सकते हो कि हाउ टू सेव एनर्जी बाय सिटिंग एट होम. नेक्स्ट इज which one of the following is not characteristics of minerals? They are created by natural processes. They have definite chemical composition. They are inexhaustible. Their distribution is uneven. They are inexhaustible. Next, conventional and non-conventional को distinguish करना हो तो अभी किया आपने. conventional exhaustible है, non-conventional inexhaustible है. conventional pollution create कर देते हैं, non-conventional pollution create नहीं करते. फिर इनके एग्जांपल्स दे सकते हो आप. नेक्स्ट इज बायोगैस, नेचुरल गैस. बायोगैस का पहले आप बताओगे कैसे पाई जाती है, और नेचुरल गैस कैसे? ऑर्गेनिक वेस्ट से पाई जाती है, सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट. बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम organic waste such as dead plant, animal material, animal dung and waste, kitchen waste. ठीक है, तो इस वजह से आप बताओगे बायोगैस जो है रिन्यूएबल. बायोगैस जो है दैट इज रिन्यूएबल. एंड साथ में क्या है? नेचुरल गैस. तो इस वजह से आप नेचुरल गैस का भी बताओगे. नेक्स्ट इज वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज होती है बायोगैस. नेचुरल गैस जो है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रीज में यूज होती है. फेरस एंड नॉन फेरस, सबको पता है फेरस में मेटल पाया जाता है, वेयर एज इन नॉन फेरस दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर. तो फेरस हम कहेंगे मेटल, दे कंटेन मेटल. फिर इसमें आप एग्जांपल बता दोगे आयरन ओर. तो इस वे से आप इसको करोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक में आप कहोगे दे कंटेन मेटल्स. नॉन मेटेलिक में कहोगे दे डू नॉट कंटेन मेटल. मेटेलिक आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फेरस एंड नॉन फेरस. तो इसमें आप इनकी एग्जांपल्स बता दोगे, मिक्स करके भी एग्जांपल्स दे सकते हो. नॉन मेटेलिक में एग्जांपल दोगे आप पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा. तो इन दिस वे यू कैन डू दीज टॉपिक्स. ठीक है.
अब अगर किसी बच्चे को जो घर पे बैठे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन शेयर विद मी. नो वन, नो प्रॉब्लम. वेरी गुड. स्टूडेंट्स आर सेइंग वी आर हैविंग नो प्रॉब्लम. थंब भेज रहे हैं मुझे. नो प्रॉब्लम. थैंक यू स्टूडेंट्स.